Class 10th History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. Topic 2, The Making of Nationalism in Europe. As we can see that the map of mid-18th century Europe, we can see that there were no nation states as we know them today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territory. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territory of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine region, the Tyrol, Austria, and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples. Bohemians and Slavs to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. Then, the question arises, how did nationalism and the idea of the nation state emerge? इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि आज हम लोग जो एक नेशन के रूप में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड को देखते हैं, वो मिड 18th सेंचुरी में ये सब छोटे छोटे कैंटोन्स में या किंगडम्स में बटे हुए थे। यहाँ तक ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की हुआ करता था और वहाँ पे विभिन्न लोग होते थे। जिस समय में मोनार्क होता था उस समय में किसी देश की बाउंड्री फिक्स नहीं होती थी। वहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के लोग होते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते थे, डिफरेंट कल्चर के लोग होते थे। लेकिन चूंकि एक पावरफुल रूलर होता था, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे करके बताया कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी में शासन करता था और उसके शासन के अंदर में जो डाइवर्स पीपल थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट कल्चर बोलने वाले, डिफरेंट कस्टम को फॉलो करने वाले, वो सब एक के बैनर के अंदर या एक रूल के अंदर इस वजह से रहते थे क्योंकि एम्परर उनको अपने अंदर में रखता था। इनके बीच में जो मोनार्की था, तो इस बीच में नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया और नेशन स्टेट कैसे इमर्ज होकर के बाहर आए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक 2.1, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also townhouses. They spoke French for the purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was formed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs.
In Western and part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France, the part of the German states, it occurred only during the 19th century. In its wake, new social groups came into being, a working class population and the middle class made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. इस टॉपिक में ये बताया गया है कि मिड 18th सेंचुरी में सामाजिक और राजनीतिक रूप से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यानी जमीन वाले जो शासन था वही इस कॉन्टिनेंट में था। इस क्लास के यानी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे वो आपस में जुड़े हुए थे, चाहे वो किसी भी रीजन के हों। उनके देहाती क्षेत्र में भी ज़मीनें होती थीं और शहर में भी मकान होते थे। वो लोग फ्रेंच बोलते थे क्योंकि उस समय के समाज में फ्रेंच लैंग्वेज एरिस्टोक्रेसी की, डिप्लोमेसी की, हाई सोसाइटी की भाषा हुआ करती थी। ये परिवार आपस में शादी के बंधन में बंधे हुए थे। हालांकि इनकी संख्या बहुत थोड़ी सी थी और जो आबादी का ज़्यादातर हिस्सा था वो किसानों का हिस्सा था। वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर ज़मीन को किराए पे दिया गया था और छोटे छोटे ओनर होते थे जो उन खेत को जोतते थे, खेतों में काम करते थे और उसके बदले में वो ज़मीन मालिक को रेंट देते थे। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ज़मीन का पैटर्न अलग था। यहाँ पर जो लैंड ओनर थे वो खुद से ही खेती करवाते थे और उन खेत में काम करने वाले लोगों को सर्फ कहा जाता था। सर्फ यानी दास, गुलाम। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कुछ हिस्सों में लेट 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हो चुका था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के हिस्सों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा। इस बीच में इंग्लैंड में एक नया सोशल ग्रुप डेवलप करता है जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। इस मिडिल क्लास में नए नए उद्योगपति, व्यवसायी और प्रोफेशनल्स होते हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप लेट 19th सेंचुरी तक बनता है, वो भी बहुत थोड़ी संख्या में बनता है। जो एजुकेटेड क्लास डेवलप किया, प्रोफेशनल्स डेवलप किए, वो मिडिल क्लास थे और वो लिबरल मिडिल क्लास था। तो ये लिबरल मिडिल क्लास जो था वह नेशनल यूनिटी पे बिलीव करता था और वो चाहता था कि एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेज यानी नोबल या चर्च को जो प्रिविलेज मिलता है वो समाप्त होना चाहिए और उसकी जगह पर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यानी कर्म के आधार पर ही किसी को पद या उसको समाज में स्थान मिलना चाहिए। Now topic 2.2 What did liberal nationalism stand for? और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है टेक्स्ट बुक के अंत में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, जिसमें कि ये पूछा गया है कि लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है एंड व्हाट इज़ द लिबरल मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। तो उसका जवाब इस टॉपिक में आएगा। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law.
Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. तो ये जो न्यू मिडिल क्लास है डेवलप किया, इसने लिबरलिज्म को माना, इसने लिबरलिज्म को फेवर किया और राजनीतिक रूप से इनका ये मानना था कि फ्रीडम, व्यक्ति को फ्रीडम मिलना चाहिए और कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए। इनका कहना था कि ऐसा गवर्नमेंट बनना चाहिए जो कि लोगों की सहमति से बने। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय से ही लिबरलिज्म का मतलब हो गया था कि जो ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेज है वो समाप्त कर दिया जाए, एक संविधान हो और उसमें जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हो जो पार्लियामेंट में बैठे, और साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये इनका मानना था पॉलिटिकल लेवल पे। उसी तरीके से इकोनॉमिक लेवल पे भी इनका मानना था, और वो था कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। आर्थिक क्षेत्र में इनका यह मानना था कि लिबरलिज्म का मतलब यह होता है कि मार्केट को, बाजार को स्वतंत्रता मिले और राज्य के द्वारा जो बाधाएं लगाई गई हैं सामग्री और पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, वो बाधाओं को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि 19th सेंचुरी में ये इमर्जिंग मिडिल क्लास का एक मेजर डिमांड था, और वो डिमांड क्यों था उनका, इस पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले सामाजिक रूप से, सोशली भी न्यू मिडिल क्लास के कुछ डिमांड थे। वो डिमांड क्या था? Equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. We can also recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied people organized opposition movements demanding equal political rights. यानी आर्थिक रूप से इनकी ये मांग थी कि यूनिवर्सल सफरेज मिले, यानी हर किसी को वोट देने का अधिकार मिले। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में भी जो सरकार बनी थी, जो वोटिंग राइट्स मिले थे, वो उसमें सभी पुरुषों को और महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी और कुछ शर्तें थीं, उन्हीं को केवल राइट्स दिए गए थे। केवल जैकोबिन्स का जो शासन आया था कुछ समय के लिए, उस शासन के दौरान में सारे मेल्स को तो दे दिए गए, सारे पुरुषों को तो अधिकार दे दिए गए वोट करने के, लेकिन महिलाओं को तब भी अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन फिर वापस जब नेपोलियन का शासन आया तो उसने महिलाओं को सब्जेक्ट टू माइनर, यानी महिलाओं का स्टेटस उसने लो कर दिया और ये कहा कि वो फादर्स और हस्बैंड्स के द्वारा ही वो समाज में आएंगी और उनके प्रोटेक्शन में उनको रहना होगा। और उसी तरीके से महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया, जिसके लिए वो अर्ली 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, पूरी 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी के अर्ली समय तक उन लोगों ने फाइट किया अपने लिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। तो ये सामाजिक स्तर पर जो लिबरल पीपल थे उन लोगों ने ये डिमांड किया था। अब इकोनॉमिक लेवल पे जो इमर्जिंग मिडिल क्लास था उनका डिमांड ये चल रहा था कि सरकार
ने जो इम्पोज किया, बाधाएं, रिस्ट्रिक्शन जो सरकार ने लगाया है उसको समाप्त किया जाए। उसके पीछे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास किया गया है क्यों ऐसा। द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, Napoleon's administrative measures has created out countless small principalities, a confederation of 39 states. Each of these possesses its own currency and weights and measures. यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि क्यों राज्य के द्वारा जो बाधा थी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने, पूंजी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, तो उसके पीछे जो कारण बताया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के ये समझाया गया है कि जर्मनी में एक 39 राज्यों का एक संघ था, कन्फेडरेशन था। अब ये जो 39 स्टेट्स थे इनके सब के पास में अपनी करेंसी थी, अपने नापने और तौलने का तरीका हुआ करता था। अब अगर 1833 में एक व्यापारी हैम्बर्ग से नुरम्बर्ग तक अपने सामान को बेचने के लिए जाता था तो उसे 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था और हर कस्टम बैरियर पे उसे 5% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। तो इस तरीके से 55% तो केवल कस्टम ड्यूटी हो जाता था। और ये जो ड्यूटीज़ बनते थे ये वेट एंड मेजर के अकॉर्डिंगली बनता था, जो गुड्स का वेट एंड मेजर होता था उसके अनुसार से बनता था। अब हर रीजन का अपना अलग वेट एंड मेजर का तरीका था। दूसरा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन भी हुआ करता था। अब जैसे कपड़ा को नापने का जो मेज़र था उसको एले कहते थे। अब एक के जगह में एले का लेंथ दूसरी जगह से अलग होता था। अब एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 centimeter। यानी अलग अलग शहर में कपड़ा को नापने का जो लेंथ था वो अलग अलग, कहीं पे 54.7, कहीं पे 55.1, कहीं पे 65.6, कहीं पे 53.5। अब ये जो बाधाएं थी ये बाधाएं मानी जाती थी इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ में। और ये जो न्यू आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो न्यू कमर्शियल क्लास डेवलप हो रहा था ये बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हो जहां पर कि वो लोग गुड्स से, कैपिटल, इवन पीपल भी बिना बाधा के आना जाना कर सके। और ये उनकी चिंता का विषय था। इसी के लिए इस चिंता के समाधान के लिए इन 1834 अ कस्टम यूनियन और Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a new network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. तो इन लोगों ने समाधान के रूप में क्या किया? 1834 में इन लोगों ने कस्टम यूनियन, जिसे कि ज़ोलवेरीन भी कहते हैं, वो प्रसा के पहल पे स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि कैसे वो अनहिंडर्ड, विदाउट ऑब्स्टेकल, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल का मूवमेंट वो जारी रख सके। तो इस यूनियन ने क्या किया? टैरिफ बैरियर को समाप्त कर दिया और जो 30 करेंसी उस समय में हुआ करती थी उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया। तो ये 1834 में हुआ। उसके बाद में फिर रेलवे नेटवर्क आ गया जिसकी वजह से लोगों का आना जाना थोड़ा आसान हो गया। और जब लोगों का आना जाना, गुड्स का, कैपिटल का आना जाना आसान हुआ तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की तरफ में लोगों को आगे बढ़ा दिया। नाउ द टॉपिक है 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that established
traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property, and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the evolution of feudalism and serfdom would strengthen the autocratic monarchies of यूरोप। यानी 1815 के बाद में शासन कैसे ही आई। अभी 1815 का जिक्र क्यों है? क्योंकि फ्रांस में जब नेपोलियनिक पीरियड रहा तो 1815 में नेपोलियन की हार होती है और 4 यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसा, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया, ये चारों मिल करके नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा देते हैं। और नेपोलियन के हारने के बाद में अब ये बात उठती है कि अब यूरोप में किस तरीके का शासन होगा, यहाँ तक कि फ्रांस में किस तरीके का शासन होगा। तो उस फिर से वहाँ पर स्थापित हो जाता है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की सरकार। कंजर्वेटिव्स कौन लोग हैं? तो कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो मानते हैं कि जो पहले से स्थापित सिस्टम है, जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, जो समाज पहले से चला आ रहा है, यानी जहाँ पर मोनार्क है, चर्च है, सामाजिक रूप से जो ऊंचा नीचा है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, वो सब कुछ वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन अब 1815 में जो कंजर्वेटिव्स थे उनमें थोड़ा सा बदलाव आता है। बदलाव ये आता है कि अब वो चाहते हैं कि 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का जो मोनार्की हुआ करता था, जो कंजर्वेटिव रूल था, वैसा अब ना हो। क्योंकि अब उन लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा था कि नेपोलियन ने जो बदलाव शुरू किए थे, जो मॉडर्नाइजेशन उसने किया था, वो अब ज़रूरी है, क्योंकि इससे वह अपने पावर को ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। और अगर उनके पास में एक मॉडर्न आर्मी होगा, एक प्रभावशाली ब्यूरो नौकरशाही होगी और एक बेहतर इकनॉमी होगा और फ्यूडलिज्म को समाप्त कर दिया जाए, सर्फडम यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, तो इससे यूरोप में उनकी मोनार्की और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और इसी उद्देश्य से 1815 में ब्रिटेन, रसा, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये तीनों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिलते हैं, इसलिए कि अब दे विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ यूरोप। द कांग्रेस वॉज hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1850 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. तो ये लोग बैठते हैं वियना में, 4 पावरफुल कंट्रीज, और इसको लीड करते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। और इस ट्रीटी ऑफ वियना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि नेपोलियनिक वॉर के दौरान में यूरोप में जो कुछ भी बदलाव हुआ था उसको अंडू कर दिया जाए, यानी वापस फिर उसको ले आया जाए जो कि प्री रेवोल्यूशन के ड्यूरेशन में था। अब फ्रांस में रिवोल्यूशन से पहले बॉनबॉन डायनेस्टी हुआ करता था, तो 1815 में एक बार फिर से बॉनबॉन डायनेस्टी को पावर में रीस्टोर किया गया और फ्रांस में को वो सारी टेरिटरी छोड़नी पड़ी जो कि नेपोलियन ने जीत लिया था दूसरे देशों से। यही नहीं, आगे फ्रांस में फिर कोई ऐसी घटना न हो या फ्रांस आगे फिर कभी नेशनलिज्म या टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात न करे, इसी के लिए फ्रांस के बॉर्डर पे कई राज्यों को सेटअप कर दिया गया। जैसे बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जेनोविया वॉज एडेड टू पिडमेंट इन द साउथ। प्रसा वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। लेकिन जर्मन कन्फेडरेशन का जो 39 स्टेट्स था
जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था उसको अनटच्ड रखा गया, उसको नहीं छोड़ा गया। पूरब की तरफ में रसा को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और प्रसा को सैक्सोनी का कुछ हिस्सा दिया गया। इन सब का जो मेन इंटेंशन था वो यह था टू रीस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो 1815 में एक बार फिर से वही शासन आ गया जो 1789 के पहले था। अब ये जो कंजर्वेटिव रूल होता है ये ऑटोक्रेटिक होता है, ये निरंकुश होता है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. अब जो ऑटोक्रेटिक जो निरंकुश शासन होता है वो अपने खिलाफ विरोध नहीं बर्दाश्त कर सकता, अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि कोई निरंकुश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। वैसे किसी भी न्यूज़पेपर, बुक्स, नाटक, गीत जिसमें कि लिबर्टी की बात हो या फ्रीडम की बात हो उसको सेंसरशिप कर दिया जाता है, यानी उसमें उनको बैन कर दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है। यहाँ तक कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में जो बेहतर मेमोरी थी उसको कर्ब कर दिया गया। One of the major issues taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative rule was freedom of the press. तो न्यू कंजर्वेटिव रूल आने के बाद में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था फ्रीडम ऑफ द प्रेस का, यानी मीडिया के ऊपर जो पाबंदी लगा दी गई थी उसका इन लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। नाउ द टॉपिक 2.4 द रिवोल्यूशनरीज। 1815 में जब एक बार फिर से कंजर्वेटिव रूल इस्टब्लिश हो गया तो जितने भी नेशनलिस्ट लिबरलिस्ट थे जो फ्रीडम की बात करते थे या कंसेंट गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात करते थे, अब वो कंजर्वेटिव रूल के दुश्मन हो गए। तो इसलिए उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया, कुछ को फांसी पे भी लटका दिया गया। क्योंकि इस समय में टू बी रिवोल्यूशनरी at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. अब रिवोल्यूशनरीज का कोई जगह नहीं था कंजर्वेटिव रूल में, मोनार्की में, लेकिन जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि वो नेशन स्टेट बने। इस वैसी स्थिति में ज़्यादातर लिबरल नेशनलिस्ट वेंट ग्राउंड, वो लोग अंडरग्राउंड में चले गए, छिप गए और छिप करके अंदर ही अंदर वो लोग नेशनलिज्म को, नेशनल स्पिरिट को लोगों के बीच में फैलाते रहे। और इसमें कई सारे रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। यहाँ पर एक ऐसा ही रिवोल्यूशनरी इटली के रहने वाले रिवोल्यूशनरी गॉसेपी मैज़िनी का जिक्र किया गया है। गॉसेपी मैज़िनी का जन्म हुआ 1807 में जियोना में और वह कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी है उसके मेंबर हो गए। 24 साल की उम्र में इनको इनके देश से निकाल बाहर किया गया था, एग्जाइल दे दिया गया था, क्योंकि 1831 में इन्होंने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन करने का प्रयास किया था, एक क्रांति करने का प्रयास किया था। इसके बाद जब इनको देश निकाला दे दिया गया तो ये फिर अंडरग्राउंड हो गया और अंडरग्राउंड हो करके ही इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया, एक मार्सेलीज में यंग इटली और दूसरा बेर्न में यंग यूरोप के नाम से। और इन दोनों सीक्रेट सोसाइटीज़ में मेंबर वो होते थे जो कि मैज़िनी के मिजाज के हिसाब से, उनके विचार के अनुसार का समर्थन करने वाले लोग होते थे। और इसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी
इन सब राज्यों के, इन सब देशों के लोग इनके साथ शामिल हो गए। मेज़नी का बड़ा ज़बरदस्त एक विश्वास था that God had intended nations to be the natural units of mankind. So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. उनका ये मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य को प्राकृतिक रूप से राष्ट्र दिया है, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों या किंगडम के पैच वर्क के रूप में काम नहीं करना चाहिए। और उनका एकमात्र उद्देश्य यह था, उनकी पूरी लड़ाई यह थी कि इटली को कैसे यूनाइट किया जाए। और उनको ही देख करके, उनके मॉडल पर ही जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड में भी कई सीक्रेट सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन हो गया। मेज़नी का जो लगातार विरोध था मोनार्की के खिलाफ, वह इसलिए था कि उनके दिमाग में एक बात स्पष्ट थी कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, एंड पीपल शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर ओन रूलर। और वो इतने ज़बरदस्त वैचारिक रूप से मजबूत व्यक्ति थे कि उन्होंने वैचारिक रूप से ही सीक्रेट रहते हुए भी एक आंदोलन यूरोप के अंदर में पैदा कर दिया था। इसी वजह से मेटरनिच ने उनके बारे में कहा है कि मेज़नी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, उन्होंने मेज़नी के बारे में कहा है कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर।